वेतन से आय शीर्षक के इस 15वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस व्याख्यान में हम गत व्याख्यान के आगे अनुलाभों के मूल्यांकन के नियमों को सविस्तार समझने का प्रयास करेंगे। गत व्याख्यान में 7 अनुलाभों के मूल्यांकन जो सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस व्याख्यान में हम प्रारंभ करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ ट्रैवलिंग और टूरिंग फैसिलिटी फॉर अवेलिंग हॉलीडेज अदर देन LTC लीव ट्रैवल कंसेशन। अवकाश यात्रा रियायत को छोड़कर अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा पुनर्भरण। Valuation of perquisite in respect of traveling, touring, accommodation and any other expenses paid, reimbursed by employer for any holiday availed by employee or any other member of household other than LTC। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। सुविधा का मूल्य होगा यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध है तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि होगा। यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सुविधा का वह मूल्य अनुलाभ माना जाएगा जो बाहरी एजेंसी जनता से वसूल करती है। Actual expenditure incurred by the employer is taxable, where such facility is maintained by the employer and available uniformly to all employees. Taxable value shall be expenditure incurred by the employer as decreased by the amount recovered from the employee. Where such facility is maintained by the employer and not available uniformly to all employees, taxable value shall be value at which such facility are offered by other agencies to the public as decreased by the amount recovered from such employee. Notes: Number 1. Where the employee is on official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him, the amount of expenditure so incurred in respect of such member shall only be liable to be taxed as perquisite. Number 2. Where any official tour is extended as a vacation, then expenses incurred in relation to such extended period of stay or vacation shall be treated as perquisite. यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो ऐसी वसूल की गई राशि उक्त मद में से घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। यदि कर्मचारी कार्यालय के कार्य से बाहर गया है तो उक्त सुविधा का मूल्य शून्य होगा, किंतु यदि उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ भ्रमण पर है तो परिवार के सदस्यों के लिए उक्त मूल्यांकन कर्मचारी हेतु अनुलाभ होगा। इसी प्रकार यदि कर्मचारी ने कार्यालय का कार्य समाप्त कर व्यक्तिगत कारणों से उक्त सुविधाओं का उपयोग किया है तो ऐसे व्यक्तिगत समय हेतु सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा। जो कार्यालय समय समाप्त होने के बाद में जो एक्सटेंडेड टाइम होगा, अतिरिक्त समय होगा जिसके लिए वह रुका है। अवकाश यात्रा रियायत या सहायता, इसे हम आगे के व्याख्यानों में समझेंगे। उस पर ये सभी नियम लागू नहीं होंगे। Next, valuation of facility of free meals and tea snacks etc. as per Rule 373. The value of free meals provided by the employer is taxable to the extent cost incurred by the employer. However, in the following cases, taxable value of perquisite shall be taken to be nil. Tea or snacks provided during working hours in a remote area or an offshore installation.
free food and non-alcoholic beverages provided by such employer during working hours at office or business premises or through paid vouchers which are non-transferable and usable only at eating joints if the value thereof does not exceed 50 per meal. Taxable value shall be only in excess of 50 per meal. Facility is fully taxable if given after working hours. Working hours include extended office hours like working on holidays, overtime. The amount only in excess of rupees 50 will be taxable. If any amount recovered by employer to provide this facility, then value of perquisite is reduced by the amount recovered from the employee. निशुल्क भोजन, नाश्ता, शीतल पेय पदार्थ आदि की सुविधा का मूल्यांकन। कार्यालय समय में यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य इस प्रकार होगा। नंबर 1, चाय अथवा चाय के समान अन्य पेय जो अल्कोहलिक नेचर के ना हो, नॉन अल्कोहलिक हो, जो नशीले पदार्थ ना हो, तथा हल्का नाश्ता आदि सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है। नंबर 2, भोजन एवं अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ आदि की सुविधा यदि यह सुविधा दूर दराज के क्षेत्र, रिमोट एरिया या अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर साइट पर प्रदान किए गए हैं तो वे भी पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यदि उपरोक्त दूर दराज के क्षेत्र और अपतटीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थान पर ऐसी सुविधा प्रदान की गई है तो 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त होगा एवं आधिक्य को वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। यदि उक्त सुविधा कार्यालय समय के पश्चात प्रदान की गई है तो पूर्णतः कर योग्य है। यदि यह सुविधा नियोक्ता ने देने के लिए कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो कर योग्य राशि जो उपरोक्त तरीके से हम ज्ञात करेंगे उसमें से कर्मचारी से वसूल की गई राशि को कम कर दिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा दिए गए उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर, टोकन received by the employee or his household member on ceremonial occasions or otherwise from the employer shall be equal to the amount of such gift or any voucher token. यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि पर कोई उपहार देता है अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है जिसके बदले में उपहार प्राप्त किया जा सके तो ऐसा उपहार या टोकन या वाउचर आदि सुविधा का मूल्य उपहार का मूल्य अथवा वाउचर का मूल्य होगा। इसका वैल्यूएशन करने के लिए हम जो आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधान हैं उनको एक टेबल के रूप में व्यक्त करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर टोकन इज अप टू ₹5,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि पूरे गत वर्ष में 5,000 रुपये तक की राशि का कोई गिफ्ट वाउचर या टोकन दिया गया है तो टैक्सेबल वैल्यू निल होगी। इफ वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर टोकन इज मोर देन ₹5,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि गत वर्ष में इस प्रकार से दिए गए गिफ्ट वाउचर या टोकन का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है तो जो 5,000 रुपये से अधिक राशि है वह कर योग्य मूल्य होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नोट करने के लिए है, गिफ्ट्स मेड इन कैश और कन्वर्टिबल मनी लाइक गिफ्ट चेक्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। यदि उपहार नगद में है अथवा ऐसे प्रपत्र के माध्यम से दिया गया है जो नगद में यानी रोकड़ में परिवर्तनीय है तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी, यानी किसी भी प्रकार की कर मुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी 5,000 रुपये की सीमा भी इसमें लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि नियोक्ता ने गिफ्ट चेक प्रदान किए हों। वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की सुविधा का मूल्यांकन।
The perquisite in respect of credit card is taxable as follows. Expenses incurred. Here expenses incurred means the amount of expenses plus membership fee plus annual fees for credit card provided or otherwise paid or reimbursed by the employer in respect of credit card used by employee or his household member, duly deducted by expenditure on use for official purposes, again duly deducted by if any amount recovered from the employee. The rest or remained amount shall be treated as value of perquisite. कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए व्यय जिसमें सदस्यता शुल्क व वार्षिक शुल्क भी सम्मिलित है जो क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित है वह इसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ऐसी भुगतान की गई राशि का मूल्य अनुलाभ का मूल्य होगा। यदि ऐसा व्यय पूर्णतः कार्यालय से संबंधित है तो शर्तें पूर्ण होने पर ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होगा और यदि व्यक्तिगत और कार्यालय दोनों से संबंधित है तो कार्यालय वाला वह भाग घटा दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से इस सुविधा को देने के बदले में कोई राशि वसूल की है तो उसे भी घटा दिया जाएगा। शेष रही राशि ही कर योग्य मूल्य कहलाएगी। There shall be no value of such benefit where the expenses are incurred wholly and exclusively for official purposes, provided complete details in respect of such expenditure are maintained by the employer, that is, date of expenditure and the nature of expenditure, and the employer gives a certificate for such expenditure to the effect that the same was incurred wholly and exclusively for the performance of official duty. ऐसे व्यय की राशि दिनांक एवं प्रकृति का संपूर्ण लेखा नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा जो व्यय कार्यालय के संबंधित होते हैं। कर्मचारी इस बात का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र देगा कि ऐसा व्यय पूर्णतः एवं केवल कार्यालय कार्य हेतु किया गया है। ऐसे व्ययों का सत्यापन एवं प्रमाणन कर्मचारी के उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा व्यय मनोरंजन से संबंधित है व कर्मचारी इसे कार्यालय संबंधी होने का दावा करता है तो ऐसे व्ययों का विस्तृत विवरण, मनोरंजन का उद्देश्य, प्रकृति व मनोरंजित व्यक्ति, ये सभी विवरण उसे रखने होंगे। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी जितना व्यय नियोक्ता ने किया है या रियम्बर्स किया है उसमें से ऑफिशियल पर्पज का एवं कर्मचारी से वसूल किया गया अमाउंट लेस करने के बाद शेष रही राशि को कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य माना जाएगा और उसे कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट है क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन ए क्लब। The perquisite in respect of club facility shall be any expenditure incurred including the amount of annual or periodical fees in a club by employee or any member of his household or reimbursed by the employer on that account. The amount so determined shall be reduced by the amount recovered from the employee for such benefit. Expenses incurred includes any expenses on club facility which is paid or reimbursed by the employer, amount of annual or periodical fees paid or payable to a club. Note A. Value of perquisite does not include expenses incurred on health club, sports facilities, etc. provided uniformly to all classes of employees by the employer at employer's premises. The sub-rule shall not apply in case of such expenditure is incurred wholly and exclusively for business purpose, and complete details in respect of such expenditure is
maintained by the employer, that is date of expenditure, the nature of expenditure, and its business expediency. And the employer gives a certificate for such expenditure to the effect that the same was incurred wholly and exclusively for the performance of official duties. Where the employer has obtained corporate membership of the club and the facility is enjoyed by the employee or any member of his household, the value of perquisite shall not include the initial fees paid for acquiring such corporate membership. कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने कोई क्लब की सदस्यता प्राप्त की हो या क्लब में कोई व्यय किया है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए अथवा पुनर्भरण किया जाए, तो ऐसे भुगतान की गई राशि सुविधा का मूल्य होगी व कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी से इस सुविधा के लिए कोई राशि वसूल की गई है तो ऐसी राशि को इस मूल्य में से कम कर दिया जाएगा व शेष राशि ही सुविधा का कर योग्य मूल्य होगी। नोट्स। नंबर 1, यदि क्लब का उपयोग पूर्णतः एवं केवल कार्यालय संबंधी कार्य हेतु किया गया हो, इस हेतु नियोक्ता को व्ययों का पूर्ण लेखा रखना होगा व यह उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तो इसे कर योग्य सुविधा के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि नियोक्ता ने हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एवं ऐसे ही अन्य क्लबों की सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान की हो तो भी सुविधा का मूल्य शून्य होगा, यानी कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगा। यदि नियोक्ता ने किसी क्लब की निगमित सदस्यता ले रखी है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप, वह इसका उपयोग कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों ने किया है, तो सुविधा का मूल्य निर्धारित करते समय निगमित सदस्यता प्राप्त करने पर चुकाया गया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य या फीस सम्मिलित नहीं की जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल एसेट्स। चल संपत्ति के उपयोग का मूल्यांकन। In case of computer, laptops or assets specified in Rule 3, the value of perquisite will be nil, and for rest of assets, value of perquisite shall be. In case of any other assets owned by the employer, 10% per annum of actual cost as reduced by recovery from the employee will be the value of perquisite if it is positive. In case of any other assets taken on hire by the employer, amount of rent paid or payable as reduced by recovery from the employee will be the value of perquisite if it is positive. यदि नियोक्ता कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य को कोई चल संपत्ति उपयोग के लिए देता है, नियम 3 के अंतर्गत पूर्व में वर्णित संपत्तियां, लैपटॉप तथा कंप्यूटर को छोड़कर, तो इस सुविधा का मूल्य इस प्रकार होगा। यदि चल संपत्ति का मालिक नियोक्ता है तो संपत्ति की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष। यदि नियोक्ता ने संपत्ति किराए से लेकर कर्मचारी को दी है तो इस संपत्ति के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय अथवा चुकाया गया किराया। यदि इस संबंध में कोई राशि कर्मचारी से वसूल कर ली गई हो तो इस मूल्यांकन में से उसे घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि ही कर योग्य सुविधा का मूल्य होगी। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हमने 2 बार लिखा है इफ़ इट इज़ पॉजिटिव। इसका अर्थ है कर्मचारी से वसूल की गई राशि को जब घटाने के बाद अगर कोई राशि पॉजिटिव बचती है, धनात्मक बचती है, तो ही सुविधा का मूल्य होगा। ऋणात्मक होने पर सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। चल संपत्ति के हस्तांतरण का मूल्यांकन। यदि नियोक्ता अपनी कोई चल संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरित कर देता है तो वह कर योग्य होगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप
कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम यदि कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से लिया गया है, उसकी कर योग्य मूल्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता ने जब उसे खरीदा था तब उसकी क्या लागत थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि नियोक्ता उसी संपत्ति को हस्तांतरित कर सकता है जिसका वह स्वयं मालिक हो। इसलिए जैसा कि गत अनुलाप में हमने बात की थी, किसी चल संपत्ति के उपयोग के लिए नियोक्ता खरीद कर कर्मचारी को दे सकता है अथवा किराए पर देकर लाकर कर्मचारी को दे सकता है, परंतु ऐसा यहाँ संभव नहीं है। यहाँ कोई भी संपत्ति हस्तांतरित तभी संभव होगी जब नियोक्ता ने उसे स्वयं खरीद रखा हो। जो नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत होगी उसमें से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, घटती हुई किस्त पद्धति से 50% प्रति वर्ष के हिसाब से वास्तविक लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर जो शेष राशि बचेगी उसमें से यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल कर्मचारी से ले लिया गया है, लेस कंसीडरेशन रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच सेल, आप इस हस्तांतरण को विक्रय भी बोल सकते हैं, तो जो शेष राशि बचेगी वह कर योग्य मूल्य होगा। हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक लैपटॉप नियोक्ता ने 1 लाख रुपए में खरीदा और 2 वर्ष के उपयोग के पश्चात उसे बिना किसी मूल्य के कर्मचारी को हस्तांतरित कर दिया। 1 लाख रुपए में से 50% की दर से प्रथम वर्ष के लिए मूल्यह्रास घटाकर शेष बचेगा 50,000 रुपया। द्वितीय वर्ष के उपयोग के लिए फिर 50% की दर से घटती हुई किस्त पद्धति पर 50,000 रुपये पर 25,000 रुपये का मूल्यह्रास घटाने के पश्चात शेष रहेगी राशि 25,000 रुपये। तो इस सुविधा का कर योग्य मूल्य 25,000 रुपये होगा। मान लीजिए उस लैपटॉप को देने के बदले में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से 5,000 रुपये वसूल किए गए, तो कर योग्य सुविधा का मूल्य 25,000 में से 5,000 रुपये और कम कर दिए जाएंगे और 20,000 रुपये कर योग्य राशि होगी जो उसके कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित की जाएगी। यदि नियोक्ता ने मोटर कार कर्मचारी को हस्तांतरित की है तो उसका टैक्सेबल वैल्यू यानी कर योग्य मूल्य होगा एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, नियोक्ता के लिए उसकी वास्तविक लागत, उसमें से 20% प्रति वर्ष की दर से घटती हुई किस्त पद्धति पर मूल्यह्रास घटाने के बाद शेष रही राशि में से यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो उसे भी घटा दिया जाएगा। शेष बची राशि कर योग्य सुविधा का मूल्य होगी। अदर एसेट्स, कोई अन्य संपत्ति यदि नियोक्ता द्वारा हस्तांतरित की जाती है तो उसकी भी सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाएगा और सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नियोक्ता के लिए उसकी वास्तविक लागत ज्ञात की जाएगी। उसमें से 10% प्रति वर्ष की दर से स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थिर किस्त पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास को घटाया जाएगा और यदि नियोक्ता ने कोई भी राशि वसूल की है तो उस राशि को भी घटा दिया जाएगा। शेष बची हुई राशि कर योग्य सुविधा का मूल्य होगी। पुनः यहाँ पर एक बार याद दिला दिया जाए, तीनों ही परिस्थितियों में राशि यदि धनात्मक पॉजिटिव बचती है तो ही कर योग्य होगी, नेगेटिव बचने पर उस सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। जैसे इस तीसरी परिस्थिति के लिए हमने नोट नंबर 1 लिखा है, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कार, अदर एसेट्स इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ट्रांसफर टू एम्प्लॉय आफ्टर 10 years यूज देन द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट शैल बी निल। यानी जो हमने अदर एसेट्स के बारे में पढ़ा था, 10% प्रति वर्ष की दर से स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास लगाना है। यदि नियोक्ता ने 10 वर्षों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात कर्मचारी को हस्तांतरित किया है तो 10 वर्षों में उसका मूल्यह्रास पूर्ण हो चुका होगा। उसके पश्चात तो राशि जो बचेगी वो शून्य होगी, तो अपने आप ही इस कर योग्य सुविधा का मूल्य 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब 0 में से यदि नियोक्ता ने मान लीजिए उस संपत्ति को हस्तांतरित करने के बदले में 1,000 रुपया वसूल कर लिया, तो 0 में से 1,000 रुपया घटाने के पश्चात नेगेटिव ऋणात्मक राशि बचती है -1,000। तो यहाँ पर कोई सुविधा का मूल्य नहीं होगा, इसको 0 ही माना जाएगा। दूसरा नोट हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन दिस केस मीन्स डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स। They do not include household appliances like washing machine,
माइक्रोवेव ओवन्स, मिक्सचर्स, हॉट प्लेट्स, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा। यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान में डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स शामिल किए जाएंगे, परंतु इसमें घरेलू उपयोग के उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सचर, हॉट प्लेट, फ्रिज आदि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सभी वस्तुएं अदर एसेट्स में सम्मिलित की जाती है। धन्यवाद।